Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Rao Kharse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. My dear student, in this session, we are going to learn our our chapter third, editing in MS Word. Editing in MS Word. MS stand for Microsoft and Word means it is the document, means it is the application program. Now how we can edit means what? To make a changes in saved file, to make a changes in saved file, that is called editing. So how we can make the changes in saved files, all these topics we are going to learn in this chapter. Which are these topics? See, editing in document. First topic is editing in document. Second topic is deleting the text. Deleting the text from the Word document. Third point, undo command. Undo command. Fourth point, redo command. Fifth point, moving the text. Sixth point, find the replace command. Seventh point, spelling and grammar. So these are the 7 points that we are going to learn in this chapter. So let us start our first point, editing in document. What is editing a document? See, any change is made in document is called editing. What is mean by editing? Any change is made in document. Document means Microsoft Office Word. It is also called as a document. Any change is made in document is called editing. If you if we want to make any change, we have to select the text before changing it. If we want to do something change in our Word document, for that purpose we have to select the text, and we can change that text. So how to select the text? There are 5 steps to select the text. First, what is a word? If you want to select a single word, so what you do? Double click a word. Double click a word means automatically that word is selected. I will show you the practical. See, this is the Word document. This window is known as a Word document. All of you familiar with this MS Word? Yes, correct. You all know about this MS Word. Okay, now see, this is the Word document. Huh? As like this. If we want to select a single word, here a single word, a backspace, see, this is the text. If we want to select a single word, what we do? What is our first step to select a word? To select a word, double click a word. Double click a word. Now we what we do? We just double click on this backspace, this word. We double click on this. See how the single word is selected. We just press the double key on the particular word. That word is automatically selected. Means how to select a double word. This is the selection process. Okay. Now next. Second, a sentence. How you can select a sentence? See, press and hold
control key anywhere on the sentence. Press and hold control key. All of you know the keys on the keyboard? Control key, CTRL, a small button, which is printed by CTRL. That key, that button is called as a control key. So press and hold control key and click anywhere on the sentence. So in this way we can select the sentence. See, we will see the practical. Now, this is the second line here. Here is the second line. How we can select? See, press and hold the control key. Press and hold the control key, and what happens? A sentence is selected. Press and hold control key, click anywhere on the sentence. Click anywhere on the sentence. See, this is the second line. If on this second line, if we hold the control key and click anywhere on this second line, the whole sentence is selected. The whole sentence is selected in this way. Got it now? How to select the whole sentence? Very good. Now, what is the third point? A block of text. A block of text means a single block of text. If you want to select, how you can do this? See, click at the beginning of the text and press and hold the shift key and click at the end of the text. Means first we have to, I will show you the practical. Click at the beginning of the text. टेक्स्ट के बिगिनिंग में क्या करना है? क्लिक करना है, और शिफ्ट की, कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की होती है उसको क्या करना है? प्रेस करके होल्ड करके रखना है, और जहां तक हमें वो टेक्स्ट सिलेक्ट करनी है वहां तक हम लोग क्या करेंगे? वहां पर जाकर हम लोग क्लिक करेंगे. तो उतना टेक्स्ट का ब्लॉक क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा. अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा. I will show you the practical. See, see, this is our mouse, moving mouse. We click on the one of the beginning of the text here. Here I click the beginning of the text and hold the shift key, and again at the end of the block of the text here. In this way, this much of block of text we have to select. From is used when you need to repeat the last. मतलब हम लोगों ने is से शुरुआत की और लास्ट तक, इतना ब्लॉक हम लोगों ने, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया. ओके, सो दिस इज द थर्ड स्टेप टू सिलेक्ट द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. नाउ फोर्थ स्टेप क्या है सिलेक्शन का? अब पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? होल पैराग्राफ. ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सिलेक्ट द पैराग्राफ. फोर्थ स्टेप क्या है? ट्रिपल क्लिक, मतलब 3 बार क्लिक करना है. एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ पर कहीं पर भी 3 बार क्लिक करना है, वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा. See, let us see the practical. ओके, अभी ये देखिए यहाँ पर माउस मूव हो रहा है ना, यहाँ पर ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ हमें सिलेक्ट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ट्रिपल क्लिक करेंगे. इस पूरे पैराग्राफ पर कहीं पर भी हम लोग 3 बार क्लिक करेंगे. लगातार 3 बार क्लिक करेंगे और ये पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. 1 2 3. ओके, मैंने 3 बार क्लिक किया और ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया. आया समझ में? हाउ टू सिलेक्ट द होल पैराग्राफ? वेरी गुड. अभी हम लोग देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. मीन्स
जब भी हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है, उस डॉक्यूमेंट में हमें चेंज करना है, तो हम लोग वो सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सिलेक्शन करने के 5 स्टेप्स है। अगर सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट का ब्लॉक हमें सिलेक्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और 5वां स्टेप है एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ, सी प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल ए की एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया, एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया, मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट है। ओके, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आया समझ में। इसको हमें पूरा सिलेक्ट करना है, पूरा डॉक्यूमेंट हमें सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड पे जो कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल की होता है, उसको दबाकर कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ हम लोग जो ए नाम की होती है, ए लेटर वाली, वो दबाएंगे, कंट्रोल ए, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। वेरी गुड, इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट विद द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस ए, मतलब कंट्रोल और ए ये दोनों को दबाकर हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में, वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, डिलीटिंग द टेक्स्ट, हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सी, हाँ, देयर आर 2 स्टेप टू डिलीट द टेक्स्ट यूजिंग बैकस्पेस की एंड डिलीट की। ये दोनों की से हम लोग हमारी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, तो हाउ वी कैन डिलीट द टेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप यूजिंग बैकस्पेस की। बैकस्पेस की हम लोग कैसे यूज करना चाहिए, कीबोर्ड पे लिखा होता है बैकस्पेस की, हाँ, तो वो दबाकर हम लोग टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। तो कैसे, देखिए, हाँ, द बैकस्पेस की इरेजेस मतलब वो डिलीट करती है, इरेज करती है। द बैकस्पेस की इरेजेस द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट मतलब जो हमारा इंसर्शन पॉइंट मतलब जो कर्सर होता है, जो ब्लिंक होने वाला जो कर्सर होता है, उसके लेफ्ट में वो डिलीट करती जाती है। उस ब्लिंकिंग होने वाले कर्सर के लेफ्ट साइड में वो इरेज करती जाती है। जितनी बार हम लोग बैकस्पेस की दबाएंगे उतने कैरेक्टर वो लेफ्ट साइड में डिलीट करते जाएगा। हाँ, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक बार दबाया 1 कैरेक्टर डिलीट हुआ, 2 बार दबाया 2 कैरेक्टर डिलीट हुए। ओके, लेट अस सी द प्रैक्टिकल, लेट अस सी द प्रैक्टिकल। सी, हाँ, दिस इज अवर Word document. Huh? My cursor is here. Where is my cursor? See, here is my cursor. Huh? The cursor is blinking here. See, have you seen this cursor insertion point on the first line? Here my cursor is blinking, correct? If I am pressing the backspace key one time, it will delete the E button, E key. Got it? I press one time, 1 character is deleted. I press 2 times, 2 characters are deleting from the left side. 1, 2, 3, 3 times the characters are deleted. 1, 2, 3, 4, 5. In this way, हम लोग लेफ्ट साइड में डिलीट करते जाएंगे। किसके हेल्प से, बैकस्पेस की के हेल्प से। ओके, नाउ अभी सेकेंड डिलीट की कैसे डिलीट करती है। द डिलीट की इरेजेस द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, डिलीट द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड में वो डिलीट करती जाती है। लेट अस सी द प्रैक्टिकल। ओके, now see, my cursor is on the first line. Okay, I press the delete key. What happens, my cursor is here. I press the delete button, 1, 2, 3, 4, 5. मैंने 5 टाइम्स डिलीट की बटन दबाया, वो पूरा टेक्स्ट डिलीट हुआ।
अभी देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर है मेरा कर्सर, हाँ, और मैंने डिलीट की बटन दबाया वन टाइम, एक बार दबाया आ गया, एक बार दबाया यस गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। तो जब भी मैं डिलीट की दबाता हूँ तो राइट साइड में क्या होता है, टेक्स्ट डिलीट होती है और कर्सर वही के वही होता है। लेकिन जब हम लोग बैकस्पेस की दबाते हैं, बैकस्पेस की, अब मैं बैकस्पेस की दबा रहा हूँ, तो बैकस्पेस की में क्या होता है, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट डिलीट होती है और कर्सर आगे आगे जाता है। देखिए कर्सर आगे आगे जा रहा है और टेक्स्ट डिलीट होती जाइए, डिलीट हो रही है लेफ्ट साइड में। ये बैक स्पेस की के इस्तेमाल से होता है। और डिलीट, अब मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर वही के वही है और राइट साइड में टेक्स्ट डिलीट हो रही है। आया समझ में? these are the two steps to delete the text in Word document. Now next topic, undo command. What is the use of undo command? See, this is the picture of undo command here. Have you seen this? My cursor is moving here. Huh? This picture shows the undo command. What is meaning by undo command? The undo command lets you to cancel the last change made in document. आपने लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट में कौन सा चेंज किया था उसको वो क्या करता है, कैंसिल कर देता है। अगर आपके आपने गलती से कुछ सेंटेंस डिलीट कर दिए, हाँ, और वो इम्पोर्टेंट थे, वो गलती से डिलीट हो गए, तो आप अंडू कमांड यूज़ करेंगे। अंडू कमांड यूज़ करने से क्या होता है, वो जो डिलीट हुआ है वो वापस आ जाता है। और उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। दिस इज द शॉर्टकट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडू कमांड? अंडू कमांड लेट्स यू टू कैंसल द लास्ट चेंज मेड इन डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने जो लास्ट चेंज किया था उसको कैंसिल कर देता है। यूजिंग अंडू कमांड, क्लिक द अंडू बटन लोकेटेड ऑन क्विक एक्सिस टूल बार। वो अंडू कमांड कहाँ पे फाइंड आउट होता है? क्विक एक्सिस टूल बार में। लेट अस सी द प्रैक्टिकल। दिस इज आवर वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड माय कर्सर इज मूविंग हियर। सी हियर, दिस इज द क्विक एक्सिस टूल बार और यहाँ पर अंडू कमांड होता है। दिस इज द अंडू कमांड। You can go on this here, click on this and go and click on undo, or otherwise you can use the Ctrl Z button. I will press the Ctrl Z button. See, the last action is cancelled. Okay, or otherwise you can click on this, in this way, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z यूज कर रहा हूँ मैं, तो वो जो हम लोगों ने जो डिलीट किया था वो वापस आ रहा है। दिस इज द यूज ऑफ Ctrl Z और अंडू कमांड। अंडू कमांड समझ में आया सबको? वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द पिक्चर ऑफ अंडू कमांड और क्विक एक्सिस टूल बार। हम लोगों ने यहाँ पर देखा हो, यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये क्विक एक्सिस टूल बार। ओके, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रीडू कमांड। रीडू कमांड क्या करता है? रीडू कमांड देखिए कैसे दिखता है। अंडू कमांड का अपोजिट रीडू कमांड होता है। सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडू कमांड? द रीडू और रिपीट कमांड अलाउज यू टू रिपीट द लास्ट एक्शन। मतलब क्या करता है रीडू कमांड, जो तुम लोगों ने लास्ट एक्शन की थी उसको रिपीट करता है, मतलब बार बार वही एक्शन करता है। दैट इज कॉल्ड रीडू कमांड। द रीडू और रिपीट कमांड अलाउज यू टू रिपीट द लास्ट एक्शन। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y, मतलब कंट्रोल और Y ये दोनों बटन दबाकर आप रीडू कमांड यूज कर सकते हो। यूजिंग द रीडू कमांड, क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सिस टूल बार। दिस इज द क्विक एक्सिस टूल बार। अभी हम लोग देखते हैं। लेट अस सी द प्रैक्टिकल रीडू कमांड। रीडू कमांड कैसे यूज होता है? यहाँ पे मैंने आई टाइप हियर समथिंग, टेक्स्ट।
और मैं Ctrl+Y करता हूँ, आई एम प्रेसिंग Ctrl+Y, हाँ, ओके, द सेम एक्शन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. Okay, in this way means the redo command is repeat the same action again and again. huh? This is called redo command. आया समझ में? Very good. huh? This is the use of redo command. Now next point is moving the text. How to move the text in the Word document. MS Word allows you to move a block of text. MS Word allows you to move a block of text, a word, a sentence, a paragraph, a document or a graphics. कुछ भी, कोई भी आप क्या कर सकते हो, उसको, उस टेक्स्ट को मूव कर सकते हो. सिंगल वर्ड है उसको भी मूव कर सकते हो, सेंटेंस को मूव कर सकते हो, पैराग्राफ को मूव कर सकते हो, ग्राफिक्स को भी, मतलब छोटे छोटे पिक्चर को भी आप मूव कर सकते हो. हाँ, आया समझ में? तो वो कैसे मूव करते हैं उसके पहला प्रोसीजर है कट एंड पेस्ट. पहला प्रोसीजर है कट एंड पेस्ट. कट एंड पेस्ट, बाय यूजिंग द कट एंड पेस्ट मेथड यू कैन मूव योर टेक्स्ट. सो द फर्स्ट स्टेप इन कट एंड पेस्ट, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू मूव. पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट का पार्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. और सिलेक्शन के हम लोगों ने सारे स्टेप्स देख लिए. तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो पहले. फिर सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक द होम टैब. हाँ, मतलब होम टैब पर क्लिक करना है. होम टैब, होम टैब कहाँ पर आता है, सी, होम टैब यहाँ पर आता है. हाँ, दिस इज द होम टैब. हैव यू सीन माई कर्सर, दिस इज द होम टैब. ओके, हाँ, click on the home tab. This is click on the home tab in the clipboard group and select the cut button, Ctrl X. हाँ, आप Ctrl X शॉर्टकट बटन यूज कीजिए, नहीं तो कट बटन यूज कीजिए. ओके, हाँ, कट बटन कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये माउस मेरा मूव होता है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कट बटन है होम टैब पर. हाँ, देन the text will appear from the document. The text will appear from the document. वो document में वो text appear होगी. Then move and position the cursor where you want to place the text. Select करने के बाद Ctrl X करना है, या कट बटन पे क्लिक करना है. वो क्या हो जाएगी, वो टेक्स्ट डिसअपियर हो जाएगी वहाँ से. और आपको जहाँ पर चाहिए, मूव एंड पोजिशन द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट, और जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर लेके जाइए और क्लिक द पेस्ट बटन इन द क्लीबोर्ड ग्रुप होम टैब. और आपको क्या करना है, क्लीबोर्ड पे जाके पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट दिखाई दे रहा है, ये पेस्ट बटन होम टैब में, वो करना है. अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे. अभी हमें ये वाली टेक्स्ट क्या करनी है, मूव करनी है. तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे. हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली. अभी होम टैब में गए हम लोग होम टैब में गए, कट पे हम लोगों ने क्लिक किया, कट बटन पर या Ctrl X बटन हम लोगों ने यूज़ किया. वो जो टेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट की थी वो डिसअपियर हो गई. अभी हम लोग कर्सर यहाँ पर लेके जाएंगे. ये कर्सर हम लोग यहाँ पर लेके आए, हमारा कर्सर यहाँ पर है, देखिए दिखाई दे रहा है. हाँ, हम लोग कर्सर यहाँ पर लेके आए. अभी हम लोग यहाँ पर होम टैब में जाएंगे. हम लोग होम टैब में गए, यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक किया और हम लोगों ने पेस्ट किया. देखिए, मतलब ये फर्स्ट लाइन से ये वाली सेंटेंस ऊपर से नीचे वो मूव हो गई. मतलब फर्स्ट लाइन पे थी, अभी वो लास्ट लाइन पे आ गई. इन दिस वे वी कैन मूव द टेक्स्ट बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट. आया सबको समझ में, हाउ टू मूव द टेक्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू मूव द टेक्स्ट बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी एंड पेस्ट के प्रोसीजर से हम लोग टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं. तो कॉपी एंड पेस्ट में पहला
पॉइंट है, यू कैन क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। यू कैन क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ टेक्स्ट। मतलब जब भी हम ये प्रोसीजर यूज करोगे कॉपी एंड पेस्ट में, उसमें क्या होगा, मतलब उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगा, मतलब दो दो कॉपी तैयार हो जाएगा। मतलब जहां से आप उसको कॉपी करोगे वहां पर भी रहेगा, और जहां पे आप उसको पेस्ट करोगे वहां पर भी वो नया क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ टेक्स्ट। हाँ, सेकेंड पॉइंट, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी। हाँ, आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड सिलेक्ट द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप अंडर होम टैब कंट्रोल सी। शॉर्टकट की कंट्रोल सी आप यूज कर सकते हो होम टैब में जाकर। नाउ प्लेस द कर्सर एट द प्लेस वेयर द टेक्स्ट नीड्स टू बी कॉपीड, नीड्स टू बी कॉपी। और उसको कॉपी करने के बाद आपको जहाँ कर्सर दूसरी जगह पर लेके जाना है जहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है, and click the paste button in the clipboard group under the home tab control V. Let us see the practical. See, I want to copy this sentence. So I select this sentence completely, go to home tab, click on copy button. Here is the copy button. Okay, copy, and I move my cursor here. I move my cursor here on the bottom side, and I go in the home tab and paste. Means this text is copy and paste here also, and this text is copy and paste and copy from here and make the duplicate of this sentence here. So these are the two text make by using the copy and paste. मतलब हम लोगों ने दो टेक्स्ट बना लिए, हम लोगों ने दो डुप्लीकेट सेंटेंस बना लिए। एक तो ओरिजिनल यहाँ पर, ये ओरिजिनल, एंड सेकेंड यहाँ पर हम लोगों ने डुप्लीकेट बना लिया। इन दिस वे वी कैन मूव द टेक्स्ट बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज drag and drop. How to move the text by using drag and drop method. So by using a drag and drop method, the text allows you to move the selected text using mouse. यहाँ पर हम लोगों को माउस यूज करना है। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मूव, आपको पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन प्लेस द माउस पॉइंटर एनीवेयर ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट क्लिकिंग। मतलब उस टेक्स्ट पर आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर सिर्फ लेके जाना है और उसको क्लिक नहीं करना है। यू डोंट यू आर नॉट अलाउड टू क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट, आपको सिर्फ माउस पॉइंटर उस टेक्स्ट पर लेके जाना है। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन until the insertion point changes into white arrow। मतलब आपको लेफ्ट माउस बटन क्या करना है, प्रेस करके रखना है जब तक कि वो एरो व्हाइट एरो में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एंड चौथा फोर्थ स्टेप क्या है, व्हेन यू आर ड्रैगिंग द टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ बॉक्स विथ अ स्मॉल व्हाइट एरो फॉर इट। जब आप उसको माउस से प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो वो टेक्स्ट मूव होने लगेगी। एंड व्हेन यू रीच द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट, रिलीज द माउस बटन। मतलब आपको क्या करना है, ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, लेट अस सी द प्रैक्टिकल। अभी हम लोग देखेंगे इसमें। पहले इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने अपना माउस पॉइंटर सिर्फ उस टेक्स्ट पर लेके गया। ये माउस पॉइंटर मैं इस टेक्स्ट पर लेके गया, मैंने क्लिक किया नहीं, सिर्फ मैंने माउस पॉइंटर उस पर प्लेस कर दिया। अभी मैं थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। अभी हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन, माउस पॉइंटर उस पर लेके जाने के बाद माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो क्लिक करके रखो, होल्ड करके रखो जब तक कि वो ये एरो व्हाइट एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये व्हाइट एरो में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। पहले कैसे था, पहले हम लोगों ने उसको सिलेक्ट किया,
फिर मैं माउस पॉइंटर उस पर लेके गया, फिर मैंने माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखा, हाँ, तो जो माउस पॉइंटर था वो बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। माउस पॉइंटर के नीचे देखिए बॉक्स आ गया कि नहीं? ये माउस पॉइंटर के नीचे बॉक्स आ गया है ना, मतलब वो टेक्स्ट अभी मूव हो सकती है। हाँ, अब आप उसको मूव कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए मूव हो गई, ऊपर से वो नीचे आ गई। हाँ, अगेन आपको दूसरी तरफ लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो। समझो यहाँ ये वाले लाइन पे लेके जाना है उसको, तो आप पहले उसको सिलेक्ट करोगे, माउस पॉइंटर लेके जाओगे। हाँ, माउस पॉइंटर ले जाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखोगे और माउस का पॉइंटर जो है वो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो गया। हाँ, और उसको यहाँ पे छोड़ दोगे, वैसे ही वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गई। इन दिस वे यू कैन मूव द टेक्स्ट फ्रॉम one place to another place by using drag and drop method. This method is called as a drag and drop method. This method is called as a drag and drop method. Got it now? Very good. Now next point is using copy and paste. Using copy and paste. That you had seen earlier. Okay. Now next point is find and replace command. Find and replace command. What is the use of find and replace command? See, MS Word allows you to search. MS Word allows you to search a specific word in a document. अगर आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है और उसमें से आपको सिर्फ एक आध वर्ड फाइंड करना है जो गलत है, गलत आप लोगों ने टाइप कर दिया है और वो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको ढूंढना है, तो आप उसको फाइंड करोगे और उसको रिप्लेस करोगे, मतलब उसको चेंज कर दोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। तो उसके लिए आपको फाइंड एंड रिप्लेस कमांड यूज करनी होगी। हाँ, तो MS वर्ड अलाउज यू टू सर्च अ स्पेसिफिक वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट। एक स्पेसिफिक वर्ड सर्च करने के लिए हेल्प करता है। उसके लिए क्या स्टेप है देखिए, यूजिंग अ फाइंड कमांड। फाइंड कमांड कैसे यूज होती है? क्लिक द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप। आपको पता है होम टैब कहाँ पर है? हाँ, ये देखिए, दिस इज द होम टैब। ये होम टैब है यहाँ पर। हाँ, ये होम टैब, यहाँ पर फाइंड बटन होगा, यहाँ पर फाइंड बटन होगा। हाँ, ये देखिए, ये लास्ट कॉर्नर में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइट साइड में अप इन द राइट साइड, हियर इज द फाइंड। यहाँ पे फाइंड दिखाई दे रहा है, यस, ये है फाइंड बटन। ओके। हाँ, तो हम लोगों को क्या कहा, पहला स्टेप है क्लिक द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप, सिलेक्ट द फाइंड बटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो एंड नेविगेट द पैन विल अपीयर। जब आपको मिल जाएगा उसको नेविगेट करना है, उसको फाइंड आउट करना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, विंडो के लेफ्ट साइड में। टाइप अ वर्ड और फ्रेज यू वांट टू फाइंड। हाँ, उस पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो आएगा, नेविगेशन पैन आपके सामने आएगा। उस पर आपको क्या करना है, वो जो वर्ड आप लोगों को फाइंड आउट करना है उसको टाइप करना है उसमें। हाँ, ओके। देन एज यू टाइप अ वर्ड और फ्रेज द मैचिंग टेक्स्ट विल गेट हाईलाइटेड। जो वर्ड आप उस बॉक्स में टाइप करोगे तो उससे जो मैचिंग टेक्स्ट है वो आपके पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट हो जाएगी मतलब उसको उसके ऊपर कलर आ जाएगा। यूज अप एंड डाउन एरो की टू स्क्रॉल थ्रू द सर्च रिजल्ट एंड व्हेन यू आर डन क्लोज द नेविगेशन पैन। जब आपको वो वर्ड फाइंड आउट हो जाएगा आपको नेविगेशन पैन क्लोज करना पड़ेगा। लेट अस सी द प्रैक्टिकल। हियर ये हम लोगों का वर्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर हम लोगों को लास्ट वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे होम टैब पे जाएंगे, फाइंड में गए हम लोग, फाइंड पर क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पर राइट साइड में नेविगेशन पैन आ गया। यहाँ पर हम लोगों ये नेविगेशन पैन आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो शब्द डालेंगे वो यहाँ पर फाइंड आउट होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लास्ट टाइप किया, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइप किया तो यहाँ पर वो जितने भी लास्ट नाम के वर्ड है इस डॉक्यूमेंट में कलर हो गए, हाईलाइट हो गए। हाँ, हम लोग दूसरा वर्ड टाइप करते हैं, हम लोग बटन, ये देखिए बटन, बटन नाम के कितने वर्ड है, 3 वर्ड है जो यहाँ पर फाइंड आउट हो गए। आए ध्यान में? ओके।
हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोग टाइप करेंगे अंडर, देखिए मैंने यहाँ पर नेविगेशन पैन में अंडर टाइप किया, यहाँ पर अंडर टाइप किया तो अंडर नाम का जितना भी वर्ड्स है वो सब हाईलाइट हो गए। इन दिस वे वी कैन यूज द फाइंड। फाइंड कहाँ से यूज किया हम लोगों ने? होम टैब में, यहाँ पर विंडो के लेफ्ट साइड में फाइंड यहाँ पर है, इस तरह से हम लोग ये यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये देखिए फाइंड यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इन दिस वे दिस स्क्रीन वी हैव, दिस इज द स्क्रीन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। जो वर्ड हम लोगों को फाइंड आउट हो गया है, अगर हम लोगों को उसको चेंज करना है तो हम लोग ये प्रोसेस यूज करेंगे। प्रोसेस फर्स्ट क्या है? क्लिक द होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन, फाइंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो रिप्लेस बॉक्स आ जाता है। रिप्लेस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद टाइप अ वर्ड और फ्रेज इन द फाइंड व्हाट बॉक्स दैट यू वांट, दैट यू आर सर्चिंग फॉर इट। जो वर्ड आपको फाइंड करना है उसको फाइंड में टाइप कीजिए और उस वर्ड के बदले में जो वर्ड आप लोगों को रिप्लेस करना है वो दूसरा वर्ड वहाँ पर रिप्लेस बॉक्स में डालिए। तो उससे क्या होगा? फाइंड वाला वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। टाइप द वर्ड और फ्रेज और फॉर्मेट in the replace with box and which will replace what is in the find what box, and click the find next to continue your search. And when word finds a word or phrase you can do one of the following. Click on replace, आप replace कर सकते हो, replace all कर सकते हो, और उसको bypass कर सकते हो और cancel कर सकते हो। Let us see the practical. Let us see the practical. See, we can go on the home tab, on the left side replace button. Where is the replace button? Here on the left side, up side here. Click on replace button, the find and replace box window appears. यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? फाइंड वॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइंड वॉट, यहाँ पर हम लोगों को जो ढूंढना है उसका वर्ड वहाँ पर टाइप करो। अभी मैंने यहाँ पर बटन, बटन टाइप किया, तो बटन टाइप करने के बाद ये फाइंड करेगा। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बॉटम साइड में, उसको वो बटन वो शब्द फाइंड आउट हो गया है। अभी उसको हमें रिप्लेस करना है, तो बटन के जगह पर हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे? जो हमें डालना है हम लोग डालेंगे क्यू 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 क्यू। हम लोग कुछ भी डाल सकते हो, वहाँ पर हम लोगों को जो डालना है हम लोग उसको डाल सकते हो। तो क्या करेगा? रिप्लेस, उसने देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, रिप्लेस कर दिया, अगेन रिप्लेस, रिप्लेस। ओके, मतलब तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बटन शब्द जो था उसकी जगह पे क्यू 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 आ गया। क्या आ गया? बटन शब्द पर की जगह पे क्यू क्यू आ गया। यहाँ पर भी बटन, बटन शब्द हम लोगों ने फाइंड आउट किया और उसकी जगह पे हम लोगों ने क्यू 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 को रिप्लेस कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस प्रोसीजर। ये टॉपिक समझ में आया? वेरी गुड। सो दिस इज द स्क्रीन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस स्क्रीन। ओके, this is the use of find and replace procedure. Now the next topic is spelling and grammar. What is the use of spelling and grammar? In MS Word, MS Word provides a facility to check the spelling as you type. जो भी आप टाइप करोगे उसको वो स्पेलिंग चेक करता है। अगर स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग के नीचे रेड वेवी लाइन्स आ जाती है। मतलब जिस वर्ड के नीचे रेड वेवी लाइन आ जाती है, रेड कलर की वेवी लाइन आ जाती है, तो वो स्पेलिंग गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, वो शब्द इनकरेक्ट होता है। और जिस वर्ड के नीचे ब्लू वेवी लाइन्स आ जाती है तो वो ग्रामेटिकल एरर होता है, मतलब उसका ग्रामेटिकल एरर उस सेंटेंस में होता है। सो ये दो टाइप की वेवी लाइन्स आती है, एक रेड वेवी लाइन्स
जो क्या दिखाती है, रेड वेवी लाइन्स इंडिकेट्स आइदर द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट और द वर्ड इज इनकरेक्ट, और blue wavy lines indicates a grammatical error. See, what is the steps? Huh? Point the cursor at the location where you want to check the spelling. Huh? कर्सर को पॉइंट करना है जिस लोकेशन पर जहां पर आपको स्पेलिंग चेक करना है. क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. रिव्यू टैब कहां पर दिखाई देता है? ये देखिए, ये रिव्यू टैब अप साइड. हियर इज द रिव्यू टैब. रिव्यू टैब दिखाई दिया अप साइड. ये रिव्यू टैब, यहाँ पर रिव्यू टैब है. क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. क्लिक ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप. किस में जाना है? प्रूफिंग ग्रुप में जाना है. कहाँ पर है प्रूफिंग ग्रुप? प्रूफिंग ग्रुप ये है प्रूफिंग ग्रुप. ये दिखाई दे रहा है प्रूफिंग ग्रुप अप साइड में. प्रूफिंग ग्रुप में जाना है. ये वाला पूरा प्रूफिंग ग्रुप है. हाँ, देन क्लिक ऑन प्रूफिंग ग्रुप. क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन. हाँ, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन. कहाँ पर है स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन? ये यहाँ पर है स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन. यहाँ पे दिखाई दे रहा है. क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन. हाँ, देन द स्पेलिंग पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. विंडो के राइट साइड में स्पेलिंग पैन अपीयर हो जाता है. एक छोटा सा पैन आ जाता है. चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. उसके लिए आपको फॉलोइंग ऑप्शन चूज करने हैं. क्लिक ऑन इग्नोर इफ देर इज नो सुटेबल सजेशन. अगर सुटेबल सजेशन बराबर नहीं है, जो उसने दिया वो बराबर नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दो. क्लिक ऑन इग्नोर ऑल टू कंटिन्यू चेकिंग. मतलब जो एक ऑप्शन और होता है क्लिक इग्नोर ऑल, मतलब स्पेलिंग एज इट इज़ रहने दो. ऐसे अगर आपको करना है तो क्लिक इग्नोर ऑल. द डॉक्यूमेंट बट लिविंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स अनचेंज इन द इंटायर डॉक्यूमेंट. तो जो भी चेंजेस है वो अनचेंज हो जाएंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट वैसे के वैसा रहेगा. क्लिक ऑन द सजेशन डिस्प्लेड इन द सजेशन लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द चेंज. उस बॉक्स में जो सजेशन है अगर वो चेंज करने हैं तो उस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा. क्लिक ऑन द चेंज ऑल बटन्स टू चेंज द वर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट. मतलब अगर पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना है तो चेंज ऑल बटन पे क्लिक करो. तो जो भी स्पेलिंग अगर गलत है तो पूरे डॉक्यूमेंट में अगर गलत स्पेलिंग है तो वो सारे करेक्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. क्लिक ऑन द ऐड बटन टू ऐड द वर्ड इन द एमएस वर्ड डिक्शनरी. आपको लगता है अगर वो शब्द आपको डिक्शनरी में ऐड करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के, तो वो वर्ड आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो. तो लेट अस सी द प्रैक्टिकल. सी नाउ दिस इज आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. वी गो इन द रिव्यू टैब. रिव्यू टैब वी गो ऑन दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर. क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर. राइट साइड में ये पैन आ गया. ओके, अगर हम लोग क्या करते हैं अभी, यहाँ पर हम लोग इमेज, ये जो इमेज है ये शब्द, इसका स्पेलिंग हम लोग गलत कर देते हैं. हम लोग यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत कर दी. देखिए, तो यहाँ पर वो हमें रेड वेवी लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये स्पेलिंग गलत है. ये स्पेलिंग क्या है? गलत है. तो यहाँ पर हम लोगों ने वो स्पेलिंग हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पर राइट साइड में देखिए हमें वो करेक्ट स्पेलिंग दिखा रहा है. हम लोगों को वो 5 बटन दिखा रहा है, इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड, चेंज और चेंज ऑल. तो हम लोग करेक्ट स्पेलिंग हमें वो दिखा रहा है. अगर हम लोग उसको क्लिक करते हैं, हम लोग उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज हो जाएगा. ये देखिए वो चेंज हो गया है, वो स्पेलिंग चेंज हो गया है. इन दिस वे वी कैन यूज ऑल दिस पॉइंट्स. अगर हमें ये शब्द ऐड करना है, अगर हमें एक शब्द ऐड करना है हमारे डिक्शनरी में, हम लोगों को सचिन नाम का शब्द हमें ऐड करना है. सचिन, ये शब्द हमें ऐड करना है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे. हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर में जाएंगे. यहाँ पर देखिए, ये ब्लू ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है. यहाँ पे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है.
यहाँ पर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है। अगेन हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। हाँ, ये फर्स्ट लाइन पे हम लोग चेंज करते हैं। इस फर्स्ट लाइन पे हम लोग चेंज टू पेस्ट टेक्स्ट टू पेस्ट text are different. Text are the text the Sachin are sit on the table. Huh? In this way we can type or otherwise you can see here is the blue wavy lines. It shows the grammatical mistake. It shows the grammatical mistake. In this way the red wavy lines and blue wavy lines shows the spelling and grammar mistake in Word document. Got it now? Okay. Now next topic. This is the screen of spelling and grammar to spelling or grammar checking in Word document. Okay. Thank you, student. I hope you enjoyed the today's session. Now the next topic we will come on the next session. Thank you.